Okay guys, the today topic of discussion is inductometric and electromagnetic effect. If you remember, you have seen in my previous lecture about the electronic displacement. There are two kinds of effect. One is temporary and one is permanent. So today, permanent में which are those effects? If you remember, resonance, inductive effect, plus I minus I, hyperconjugations. These are the effects which can cause a permanent shifting of electron pair. But temporary shifting of electron pair, electron displacement, depends upon two effects: inductometric effect and electromagnetic effect. Now, what is the meaning of inductometric effect? Inductometric effect is a type of temporary effect which enhances the inductive effect, and it occurs only if the presence of an attacking reagent. Let's give you a simple example. For example, if I take a methyl chloride has a formula CH. Okay, मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, in HCH3Cl, where chlorine has a partial negative charge and carbon has partial positive charge. Because chlorine is more electronegative than carbon, try to pull the electron pair toward itself, and there is a polarity. This bond is polar basically. But suppose when you add a base to it, a strong base like OH minus ions coming from NaOH, जो आपने एक base add किया है OH minus ions, so this OH minus ion will go and attack this carbon atom from the back side and result into the formation of HOC, HHH, methanol, and what is released? Cl minus. Now see properly. Initially in the methyl chloride, chlorine is carrying partial negative charge. Partial negative charge का मतलब ये है that this electron pair is not completely transferred to chlorine, but it is shift in the area of chlorine due to higher electronegativity. But when there is an attack of a reagent taking place, this partial negative charge completes into a changes into a complete negative charge. तो partial से complete negative charge बढ़ गया, मतलब polarity enhance हो गई. क्लियर है? इंडक्टिव इफेक्ट एनहांस हो गया, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है कि वन ग्रुप इज अ माइनस आई ग्रुप एंड वन ग्रुप इज अ प्लस आई ग्रुप. Plus I group releases electron towards the minus I group, due to which the electron cloud on the minus I increases, in which because of which it will have a partial negative charge. But when the OH minus ions, the reagent which is attacking the carbon atom, the positive center, so due to its attack, what will happen? The entire negative charge now shift on the carbon atom, and the partial negative will convert into a complete negative charge. So inductive effect is enhanced. Inductive effect is enhanced due to the attack of what? Reagent. So such effect is called as inductomeric effect, and it's a temporary effect. मतलब you remove this reagent, अगर तुमने इसमें से reagent निकाल दिया, it will again be back to the original. मतलब उसके पास यही पोलैरिटी है. जब तक आप reagent ऐड नहीं करोगे, पोलैरिटी एनहांस नहीं होगा, खुद से नहीं होगा. reagent ऐड करोगे, पोलैरिटी एनहांस हो गया. ओके, reagent नहीं ऐड करोगे, द पोलैरिटी विल रिमेन एज इट इज. ओके, तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ टेम्पररी इफेक्ट. ये रिएक्शन को हम लोग रिवर्स भी कर सकते हैं बाय एडिंग अनदर रिएजेंट लाइक PCl3 PCl5. अगर मैं ऐड कर दिया तो पूरा रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा. इफ आई ऐड reagent like PCl3, if I add reagent like PCl5 या SOCl2, the entire OH gas will be replaced, OH minus will be replaced by Cl minus ions, and the entire process will be reverse. Okay, now let us talk about इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और ई इफेक्ट. इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है? इट्स अ फिनोमेना ऑफ मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू द अनदर इन मल्टीपल बॉन्डेड, मतलब C डबल बॉन्ड C या C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर ये काम करेगा, या C डबल बॉन्ड O इसमें काम कर सकता है. मतलब एनी काइंड ऑफ अ डबल बॉन्ड सिस्टम में कार्बन इज अटैच टू कार्बन या कार्बन अटैच टू अनदर हेट्रो एटम्स. हेट्रो एटम लाइक ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन, अगर उससे अटैच होगा. ओके, सो इट इज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम में दिखता है. सेकेंड थिंग, ड्यू टू द अटैक ऑफ अ रिएजेंट इट टेक प्लेस, एंड द पोलैरिटी इज आइदर इंड्यूस इन इट और एनहांस इट. फॉर एग्जाम्पल ये मॉलिक्यूल देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2. क्या ये मॉलिक्यूल पोलर है? नहीं सर, ये नॉन पोलर है. वाई इट इज नॉन पोलर इन नेचर? बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम. सपोज इफ यू एड अ रिएजेंट, अ प्रोटॉन टू इट, तो प्रोटॉन विल गो एंड अटैक ऑन वन ऑफ द कार्बन एटम. सपोज उसने ये कार्बन पे अटैक किया, प्रोटॉन के पास तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट. वन इज अ सिग्मा बॉन्ड, वन इज अ पाई बॉन्ड. इफ यू रिमेंबर, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज प्रेजेंट अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन. मगर अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि देयर इज अ C सिग्मा बॉन्ड C H H
ओके, एच एच प्लेनर हो गया, एंड देयर इज अ बिग पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसको ब्रेक करने के लिए प्रोटॉन इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे अटैक करेगा। क्लियर है? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। Now what will happen when H plus ions attacks on one of the carbon atom to get the pi bond gets shift on one of the carbon atom and then it is given to the H plus ion. So it results in formation of CH2 plus single bond CH3. Clear है? So now because of the attack of the reagent, the pi bond is shifting and the charge is developed. तो चार्ज डेवलप हो रहा है, मतलब पोलैरिटी इंड्यूस हो रही है, पोलैरिटी एनहांस हो रही है। पहले मॉलिक्यूल पोलर नहीं था, अब ये मॉलिक्यूल के अंदर चार्ज डेवलप हो रहा है, मतलब द पोलैरिटी इज व्हाट एनहांस इन इट या इंड्यूस्ड इन इट। सच टाइप ऑफ इफेक्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, याद रखने का। अब नो सच टाइप ऑफ इफेक्ट इज टेम्पररी, बिकॉज अगर आप रिएजेंट निकाल दोगे तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल ही रहेगा। तो here in this case the polarity is induced or polarity is enhanced. अभी ये एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट डाउन C डबल बॉन्ड O, अ कीटोनिक ग्रुप, इट हैज़ डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इट हैज़ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, मतलब ऑलरेडी ये बॉन्ड पोलर है, बट आपने एक रिएजेंट ऐड किया। सपोज द रिएजेंट इज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग, तो NU से न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव स्पीशी। अगर ये नेगेटिव स्पीशी अटैक करेगा तो ये जाके कार्बन पे अटैक करेगा, तो व्हेन इट अटैक्स ऑन द कार्बन एटम यू गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस के NU अटैच टू C अटैच टू O माइनस। अब देखो पहले ये डेल्टा माइनस था, नाउ इट इज गेन कन्वर्ट इनटू कंप्लीट नेगेटिविटी, मतलब पोलैरिटी एनहांस हो गई। ये नॉन पोलर था, चार्ज हो गया, मतलब पोलैरिटी इंड्यूस हुई। सो इफ द पोलैरिटी इज इंड्यूस और द पोलैरिटी इज एनहांस ड्यू टू द अटैक ऑफ अ रिएजेंट, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, एंड इट टेक प्लेस ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इसके अंदर। क्लियर है? अब ये एग्जाम्पल को आप बराबर देखो। इन दिस एग्जाम्पल अ प्रोटॉन इज अटैकिंग ऑन द फर्स्ट कार्बन एटम एंड द पाई इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टिंग ऑन द फर्स्ट कार्बन एटम, मतलब जहां पर आपका रिएजेंट अटैक कर रहा है उसी पे ही पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्लस E, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ओके, अब ये न्यूक्लियोफाइल, सपोज इस न्यूक्लियोफाइल, सपोज मैं सेम रिएक्शन ले रहा हूँ, CH डबल बॉन्ड O CH3 एसिटाल्डिहाइड, इस पे आपने ऐड किया है साइनाइड, अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग। दिस इज डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, दिस इज डेल्टा नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डेफिनेटली दिस साइनाइड विल गो एंड अटैक ऑन द कार्बन एटम ड्यू टू विच द पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट्स कंप्लीटली ऑन द ऑक्सीजन एंड रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन CH3 CH CN सिंगल बॉन्ड O विथ 3 लोन पेयर माइनस। तो अब नोटिस करो, ये आपका रिएजेंट है, इसने पोलैरिटी को बढ़ा दिया, डेल्टा माइनस से कंप्लीट माइनस साइन कर दिया बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बट दिस रिएजेंट इज अटैकिंग ऑन द कार्बन एटम एंड द पाई इलेक्ट्रॉन इज नॉट शिफ्टिंग ऑन द कार्बन एटम बट इट शिफ्ट ऑन द ऑपोजिट एटम। तो सच फिनोमेना इज कॉल्ड एज नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन अटैकिंग रिएजेंट के ऑपोजिट साइड पे ट्रांसफर हो जाए। ओके, सो दैट विल बी कॉल्ड एज माइनस E इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड ड्यू टू द अटैक ऑफ अ रिएजेंट, या तो ये प्लस E हो सकता है, मतलब पाई बॉन्ड शिफ्टिंग ऑन द सेम कार्बन एटम जिस पे रीजन अटैक कर रहा है, और इट कैन शिफ्ट ऑन द अदर एटम्स, ऑपोजिट एटम जिस पे रीजन अटैक नहीं कर रहा है, मतलब इट इज एक्चुअली शिफ्टिंग ऑन द एटम अपोजिट टू द एटम विद द रीजन इज बीन अटैक, तो उसको हम लोग बोलेंगे माइनस E इफेक्ट। एंड दिस टू इफेक्ट्स, या जो भी ये इफेक्ट है, ये सारे इफेक्ट टेम्पररी है। मोमेंट यू रिमूव द रिएजेंट दे विल अगेन रीगेन दियर ओरिजिनल फॉर्म, मतलब वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही रहेंगे। जब तक रिएजेंट है तब तक कि वो पोलैरिटी इंड्यूस से एनहांस हो सकती है, रिएजेंट आप हटा दिए वापस से वो नॉन पोलर या तो पार्शियल पोलर स्टेट में आ जाएंगे। क्लियर है?